Hello everyone, welcome to Chemistry Art. Myself Bhavi Kumar Patel, and today we are going to discuss about the chapter number 2. Okay. So let's discuss about matter is around us pure or not. So first of all, what do you mean by pure? Okay, what do you mean by pure? If anybody is telling that this is a pure thing, okay, it means that generally the people are understanding there is no any adulteration. Okay, no any adulteration. No adulteration is known as a pure compound or pure thing. Okay, but in the science language, what is the pure? Okay, meaning of pure means what? आप किस चीज़ को pure बता सकते हो? Okay, so in science, what is the pure? Pure means what? If any compound is made up of only one kind of particle. Okay, only one type of matter, or we can say that the particles. Okay, only one type of matter or particles, so it is known as a pure thing. Okay, so what do you mean by one kind of particle or one kind of atom? So let's see one example I am giving you. Suppose this is the crystal. Okay, this is the crystal of sugar. Okay, in the crystal of sugar you can tell that all the particles are made up of only sugar particles. Okay, this is the crystal of sugar, and all the particles are made up of sugar molecules. Okay, all the particles are made up of only sugar molecules, so it is known as a pure substance. But suppose you are preparing a solution. ओके, विच सॉल्यूशन? शुगर सॉल्यूशन. ओके, इसी शुगर को आपने क्या कर दिया है? वाटर के अंदर ऐड कर दिया है. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ शुगर. ओके, व्हाट इज इट? इट इज द सॉल्यूशन. ओके, किसका सॉल्यूशन है? शुगर सॉल्यूशन. सो इन शुगर सॉल्यूशन यू नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट. सो हियर शुगर प्लस वाटर. इट मीन्स दैट दो चीज़ें आ गई इसमें, एक तो शुगर भी है और एक वाटर भी है. मीन्स दो अलग अलग कंपाउंड आ गए हैं यहाँ पर. सो इस सॉल्यूशन को हम प्योर नहीं बता सकते. ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन इट. दो टाइप के पार्टिकल थे, वन शुगर मोलिक्यूल्स एंड द सेकंड वन इज द वाटर. ओके, सो दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स है. सो दिस शुगर क्रिस्टल इज प्योर, but this is not a pure compound. Okay, sugar solution is not a pure compound. We can say it is a mixture. Okay, it is a mixture. Okay, so clear about what is pure and what is not pure. So here we have to see the classification of pure compound. Okay, so let me write here the classification of matter. But first of all, what is matter? You know that the matter means what? Anything which is having a particular mass and occupying space is known as a matter. So two classifications are there of matter according to the purity. So one is known as a pure substance. Let me write here pure substance, and another is known as a mixture, means which is impure. ओके, सो प्योर किसको बोलेंगे? प्योर का मतलब है यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है सब्सटेंस है एक ही टाइप के पार्टिकल्स में से बनी होगी, है ना. उसके अंदर जो भी एटम्स या मोलिक्यूल्स होंगे एक ही टाइप के होंगे, तब उसको क्या बोला जाता है? प्योर. सो आई कैन राइट हियर in short that what is pure substance. So pure substance means
any substance which is having or which is made up of only one kind of particles, one kind of the particles, one, or you can also write as a molecule, one kind of molecules. Okay, so pure substance means it is having a particle और molecule means atom में से बनाओ या molecule में से बनाओ, एक ही टाइप के होने चाहिए और तभी उसको प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। ठीक है, अगर वाटर की बात करो तो सिर्फ प्योर वाटर होना चाहिए उसमें। एंड मिक्सर मीन्स व्हाट? तो मिक्सर मीन्स which is made up of more than one kind of particles, और atoms और molecule means कि उसके अंदर एक से ज़्यादा particle या मैटर पार्टिकल या molecules हो गए। ओके, सो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, सो अब ये जो प्योर सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस को now this pure substance can be classified into two different categories. Okay, one is known as a elemental form। आपके पास प्योर सब्सटेंस है मतलब आपके पास जो भी सब्सटेंस है वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स में से बने हैं। ओके, तो उसको क्या नाम दिया है? एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स या तो बना होगा एलिमेंट्स में से या तो फिर वो बना होगा कंपाउंड्स। ओके, उसको दूसरा नाम दिया है कंपाउंड्स। ओके, सो एलिमेंटल फॉर्म एंड कंपाउंड फॉर्म, दो टाइप के फॉर्म आते हैं यहाँ पर। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या होगा? एलिमेंटल फॉर्म का मतलब ये है कि भाई आपका जो मैटर है, आपके पास जो मैटर है वो एक सिंगल टाइप ऑफ एटम्स में से बने होंगे, तब उसको बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो गए। ओके, सो एलिमेंट मीन्स प्योर सब्सटेंस तो है ही, बट उसमें हम क्या लिखेंगे? प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा? प्योर सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब्सटेंस को, मेड अप, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। बट वो पार्टिकल में क्या है? वन काइंड ऑफ एटम्स की बात की है हमने। किसकी बात की है? वन काइंड ऑफ एटम्स। उसके पार्टिकल क्या हो गए? एटम्स हो गए। ये मेन डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। भाई कंपाउंड जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट में से या फिर सेम एलिमेंट के, लेकिन उसमें दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तब जाके कंपाउंड बनता है। जब एलिमेंट में क्या हो गए? सिंगल एलिमेंट के पार्टिकल्स हो गए, मीन्स सिंगल एलिमेंट के सारे एटम्स हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एलिमेंटल फॉर्म बताना है ना, एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है, मीन्स हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम। देखो मैंने सब सिंगल लिखा है, आई हैव नॉट रिटन O2 और H2 और N2, है ना। तो ये उसके एटमिक फॉर्म्स है ना। सब अगर एटमिक फॉर्म में है तो हम उसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंटल फॉर्म। फॉस्फोरस का P हो गया, Fe मेटल, ओके, देन एल्यूमिनियम ये भी मेटल है, क्लोरीन इज़ नॉन मेटल। तो आगे हमें इसका भी क्लासिफिकेशन करना है एलिमेंट का, तो वो तीन देखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले कंपाउंड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। व्हाट इज़ कंपाउंड? तो अगर कंपाउंड की बात करें सो कंपाउंड में क्या आएगा कि भाई यहाँ पर मैटर जो है वो मैटर प्योर तो है, प्योर में दो क्लासिफिकेशन किए, एक तो एलिमेंटल फॉर्म और दूसरा कौन सा? कंपाउंड। एलिमेंटल फॉर्म किसको बोला? सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स हो गए, और वो पार्टिकल्स मतलब क्या? सिंगल काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम्स हो गए वहाँ पर, नो कॉम्बिनेशन इज देयर, देन इट्स नॉन एज एलिमेंटल फॉर्म। लेकिन कंपाउंड का मतलब क्या होगा? ये मेकअप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स में से बना होगा। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ, it is made up of only one kind of molecules, now what is this molecule? मोलेक्यूल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मेन डिफरेंस क्या है? देखो दोनों ही केस में एलिमेंटल फॉर्म हो या फिर कंपाउंड का फॉर्म हो, दोनों में एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो गए। बट एलिमेंटल फॉर्म मीन्स व्हाट? एलिमेंटल फॉर्म मीन्स द पार्टिकल्स आर द एटम्स, ओके, एंड कंपाउंड मीन्स व्हाट? द पार्टिकल्स आर द मोलेक्यूल्स। अब मोलेक्यूल का मतलब क्या है? तो मैं मोलेक्यूल की अगर डेफिनेशन यहाँ पर साइड पर लिखूँ तो मोलेक्यूल का मतलब ये होता है इफ़ टू और मोर एटम्स आर कंबाइनिंग, ओके, कितने?
two or more atoms of same or different elements फॉर्मिंग मोलिक्यूल। ठीक है, तो मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए और तब जाके वो क्या बनाएगा, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल यू कैन राइट एग्जांपल, ओके, O2 का मतलब देखो यहाँ पर सेम टाइप के पार्टिकल्स है, सेम टाइप के एटम्स है, दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, बट दो तो है ना, ओके। और अगर डिफरेंट एलिमेंट का एग्जांपल दूँ तो डिफरेंट एलिमेंट में से जो कंपाउंड बनता है तो उसका एग्जांपल मैं दूंगा H2O। यू कैन सी हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, बट मेन थिंग इज मोलिक्यूल बनता कब है, टू और मोर एटम्स आर कंबाइनिंग सेम और डिफरेंट एलिमेंट के, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि भाई आपका एलिमेंटल फॉर्म है या कंपाउंड, ओके, ये हमें देखना है। और अगर और आगे क्लासिफाई करें हम एलिमेंट और कंपाउंड में, तो एलिमेंट के और भी क्लासिफिकेशन हो गए, ओके। एलिमेंट को आप वापस 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एलिमेंटल फॉर्म कैन बी फर्दर क्लासिफाई इनटू द 3 कैटेगरीज। वन इज नॉन एज metals, okay, another is known as non-metals, and the last one is we are saying it metalloids, okay, last one is metalloids। ठीक है, so metals, non-metals and metalloids examples हमें पता है। metals का अगर example दूँ so you know that iron, copper, Ag means silver, ठीक है, these are the metals, okay। एक लिक्विड मेटल भी याद रखना, मर्क्यूरी, इट्स अ लिक्विड मेटल, ओके। नॉन मेटल्स, इफ आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, देन द फॉस्फरस, सल्फर विच आर सॉलिड फॉर्म ऑफ नॉन मेटल्स, देन द ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है तब, देन द कार्बन, देन द क्लोरीन, these are the non-metals, okay, these are the bromine, these are the non-metals। and metalloids, so example of metalloids you can say that's silicon, germanium, okay। so this is the classification of element, metals, non-metals and metalloid, but this classification is on which base, okay। so this is the on the base of their property, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है और मेटालॉइड्स। तो वो प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल नॉन मेटल की और मेटलॉइड्स की। जैसे कि जनरल प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, मेटल सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल जो है वो सॉलिड एंड गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं कुछ नॉन मेटल्स, ओके। एंड मेटलॉइड्स सॉलिड, बट मेटल की सोनरस प्रॉपर्टी होती है, लस्ट्रस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स की ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होती है। मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बट नॉन मेटल्स आर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये हमें पता है, बट वन मोर थिंग वी कैन क्लासीफाई अबाउट द एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट एंड कंपाउंड जो है, अगर आपके पास एलिमेंटल फॉर्म है तो मेन चीज़ देखो, सिर्फ सपोज यू आर हैविंग द स्मॉल सॉलिड पार्टिकल ऑफ आयरन, तो उसके सारे के सारे जो एटम्स जो है वो एटम्स किस में से बने होंगे, Fe में से ही बने होंगे। कैन यू डिवाइड देम, Fe को आप अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। सो वी कैन से दैट एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द अनदर एटम्स, ओके। ये जो है वो हम ब्रेक नहीं कर सकते, ओके। कैन नॉट बी ब्रोकन इन smaller particles, ओके, कैन नॉट बी ब्रोकन इन मोर स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है भाई, अगर मेरे पास Fe का एटम है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म हो गया, Fe का एटम है तो हाँ है, उसको अब Fe में से वापस दो अलग अलग पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते आप, ओके। जस्ट लाइक दैट अब यहाँ पर कंपाउंड में क्या होगा, तो कंपाउंड मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा है ना। कंपाउंड मीन्स व्हाट, और एग्जांपल दे दूँ यहाँ पर, तो कंपाउंड के और एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, देन क्लोरीन गैस, ये तो गैसेस की बात हो गई। H2O, ठीक है, शुगर मोलिक्यूल, शुगर का फॉर्मूला पता है C6H12O6। सो दीज आर द कंपाउंड्स, ओके, विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2
काइंड ऑफ एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम में से बना है, हाँ दे कैन बी सेम और डिफरेंट एलिमेंट। ओके, तो अगर यहाँ पर आप एटम को ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेक होगा, ओके वो ब्रेक होगा, एंड यू कैन से दैट द कंपाउंड कैन बी broken into एलिमेंट, दे कैन बी ब्रोकन इनटू द एलिमेंट, है ना। और यहाँ पर छोटे से पार्टिकल, मतलब यहाँ पर एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो खुद ही एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म ही है खुद ही, जबकि यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट हियर एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ओके दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो ऑक्सीजन गैस जो है वो दो ऑक्सीजन एटम में से बना है, दिस आर द टू ऑक्सीजन एटम, और उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ओके। सो दिस इज वन एटम, दिस इज अनदर एटम, ओके दिस इज ऑक्सीजन मोलिक्यूल, तो दो एटम में से बना है, ठीक है ऑक्सीजन। जस्ट लाइक दैट if I am writing H2O, this is the molecule of H2O, but this molecule is made up of two kind of atoms, hydrogen atom, another hydrogen atom, and they are combined with the oxygen atom, oxygen. So this is the structural formula of the hydrogen element. अब जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा, if I will break down them, तो किस में वो ब्रेक हो गए, सी अगर यहाँ से ब्रेक करूँ, यहाँ से ब्रेक करूँ, सो हियर वी आर हैविंग टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओके ऑक्सीजन। सो इट मीन्स दैट यू कैन ब्रेक डाउन द कंपाउंड इनटू द एलिमेंटल फॉर्म, है ना, इसको अलग कर दिया यहाँ से, इसको अलग कर दिया यहाँ से, तो एलिमेंट बन गया वो, ओके। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन, एंड वन very very important thing about the compound is what, कोई भी कंपाउंड जो है उसके अंदर एलिमेंट जो है दे आर हैविंग द फिक्स कंपोजिशन ऑफ द एटम्स, ठीक है। जैसे कि वाटर की बात कर रहा हूँ तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का कंपोजिशन फिक्स है, ओके बाय मास, 2 हाइड्रोजन्स आर देयर एंड 1 oxygen is there, so their masses are fixed, okay. So here you can write have a fixed composition, okay. The particles का मतलब समझ जाना है, एटम्स एलिमेंट्स की बात करें, particles have fixed composition, okay. Particles are having the fixed composition, okay. So these are the main points about the compounds, okay. तो हमने यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, मैटर जो है, मैटर के 2 क्लासिफिकेशन, एक प्योर सब्सटेंस, अनदर इज मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस के वापस 2 क्लासिफिकेशन, एलिमेंटल फॉर्म एंड द कंपाउंड फॉर्म, और बाद में एलिमेंटल फॉर्म के वापस 3 क्लासिफिकेशन किए हमने, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ठीक है। अब बचा ये मिक्सचर, ठीक है, ये मिक्सचर जो है, ओके चलो यहाँ पर मिक्सचर का भी हम क्लासिफिकेशन में थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मिक्सचर का जो क्लासिफिकेशन है, मिक्सचर कैन बी क्लासीफाई इनटू द 2 कैटेगरी, ओके, मिक्सचर कैन बी क्लासीफाई इनटू द 2 कैटेगरी, कि भाई कौन से टाइप के मिक्सचर होते हैं। सो 1 कैटेगरी इज नॉन एज अ homogeneous mixture, okay, one is the homogeneous mixture and another is known as a heterogeneous, okay, heterogeneous mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, okay, 2 कैटेगरी है, okay. So homogeneous and heterogeneous में फ़र्क क्या है? homogeneous means what, the particles मीन्स द कंपाउंड, भाई सबसे पहले तो मिक्सचर बना किस में से है, देखो मोर देन 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स में से, ठीक है, मिक्सचर किस में से बना है, मोर देन 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स में से, लेकिन वो पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में अगर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन वी कैन से द मिक्सचर इज अ होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, ओके यहाँ पे मुझे लिख देने दो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या लिखूँगा यहाँ पर, यूनिफॉर्म
composition, uniform composition, where in heterogeneous what I can write here, heterogeneous में मैं क्या लिखूँगा, non uniform, okay, non uniform composition, ओके, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. एग्जाम्पल लेके तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट हियर वन एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन. ओके, मैंने क्या ले लिया है, आई एम हैविंग अ वाटर, ठीक है, इन दिस बीकर आई एम हैविंग द वाटर. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर H2O and I have dissolved in it sugar crystals. Okay, sugar crystals are there. So sugar crystal, when I am dissolving the particles, means molecules of the sugar will be distributed throughout the solution. पूरे solution में हर जगह पर फैल जाएंगे. So I am having H2O plus sugar. अब ऐसा नहीं कि भाई ऊपर का जो लेयर है, या फिर ऊपर से या टॉप पर से या बॉटम में शुगर के कंपोजिशन कम ज़्यादा हो गए. आप कहीं से भी लिक्विड ले लो, मीन्स सॉल्यूशन ले लो, यू विल सी द सेम टेस्ट. ओके, आपको टेस्ट जो है वो सेम ही लगेगा, बिकॉज दे आर हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन. पूरे सॉल्यूशन के अंदर शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स सेम है. इट इज़ नॉन एज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ओके, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो सॉल्ट प्लस शुगर. ओके, सॉल्ट प्लस शुगर मीन्स सपोज आई एम हैविंग इन वन बाउल, मेरे पास क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, एक बाउल में मेरे पास क्या है, दिस इज सॉल्ट, एंड इन अनदर बाउल सपोज आई एम हैविंग द शुगर. ओके, शुगर को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ. ओके, सपोज आई एम हैविंग द शुगर, और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग द मिक्सर, मतलब दोनों को एक बड़े बाउल में क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ. जब मैं बड़े बाउल में मिक्स कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर कहीं कहीं पर सॉल्ट ज़्यादा होगा और कहीं कहीं पर शुगर ज़्यादा होगी. ओके, सी लाइक दिस. ओके, हर जगह पर सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. सो व्हेन द मिक्सचर इज़ नॉट हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, देन इट इज़ नॉन एज अ हेट्रोजीनियस, है ना. कहीं पर सॉल्ट ज़्यादा होगा, कहीं पर शुगर ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है. वाटर और शुगर का कंपोजिशन फिक्स है. ओके, सो इट इज़ नॉन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मीन्स what? The fixed composition is known as a homogeneous, and the compositions are different, then it's known as a heterogeneous. Okay, so this is the full classification of matter. ठीक है, ये पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन आप देख लो. यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आप नोट्स बनाने में आपको काम आएगा. ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी डेफिनेशन दूंगा वन बाय वन. व्हाट इज़ कंपाउंड, व्हाट इज़ द देन मिक्सचर, उसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को थोड़ा सा डीप में हम स्टडी करेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय एवरीवन.